Assalamualaikum students, hope you are fit as a fiddle. In today's lecture, we'll proceed further with the solutions of this chapter, sound. So let's continue with question number 5, which is you open your books, page number 59, and there is the question: a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. Now, from the question, it's given that the number of oscillations are 40 and total time taken is 4 seconds. Now, time period, as we know, we have to find out how can we find out the time period is dividing time by the number of oscillations. So here the time is 4 seconds and the number of oscillations is 40. Now that is equivalent to 1 by 10 second, and if we further see, it will be zero point 0.1 second. Now on the other hand, if we have to find now the frequency, then there is a formula for finding out the frequency as well, and that is number of oscillations per second. Now there the number of oscillations divided by time is 40, which is the total number of oscillations, and time taken is 4 seconds, and that is equivalent to 10 per second or 10 hertz, you can say. This is the solution of question number 5. Now let's further proceed to question number 6, which is the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. Now, from this question, we have to find out what is the time period of the vibration. Now, number of vibrations per second is given, and that is 500 vibrations. And time period, we have to find out the time period by dividing time with the number of vibrations. So let's take 1 by 500, and that is equivalent to 0.002 second. And this is our answer for question number 6. Moving on to question number 7, which is the identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments. And the instruments are dolak, sitar, and flute. And in dolak, which part of the instrument vibrates to produce sound? That is stretched membrane. इसमें एक पार्ट है, हिस्सा है इस इंस्ट्रूमेंट का, ढोलक का, जो कि वाइब्रेट होने पे साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज़ द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एक्चुअली. Now in second instrument sitar, there is the string, a part which vibrates to form sound. And the third one flute में air column है जो कि वाइब्रेट होता है एंड वो साउंड प्रोड्यूस करता है थ्रू दैट वाइब्रेशन. सो द आंसर्स आर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन फॉर ढोलक, स्ट्रिंग फॉर सितार एंड एयर कॉलम जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्लूट में. दीज आर द पार्ट्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, गिवन इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि वाइब्रेट होने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, which is the difference between, you have to tell the difference between noise and music, and can music become noise sometimes? Now the answer is the type of sound which are unpleasant to listen is known as noise. यानी वो sounds जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, those are known as noise. And music on the other hand is a pleasant sound which produces a sensation, जो एक अलग तरीके की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है एंड इज़ क्वाइट प्लेजेंट टू आवर एयर्स, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है. दिस इज़ म्यूज़िक. एंड येस, ऑफन जो म्यूज़िक होता है व्हेन इट इज़ टू लाउड, then it also becomes noise at that time. Otherwise music is quite pleasant. Now this was the answer of question number 8, and moving on to question number 9, which is list the sources of noise pollution in your surroundings.
अब अगर हम अपनी सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो देर आर मैनी मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशंस दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, और जिनको कि हम काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो नॉइज़ पोल्यूशन बनता है। एंड दैट इज़ द साउंड ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की आवाज़, किचन अप्लाइंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, वो भी साउंड काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट ऑल्सो लेड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड्स ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स जो हम फेस्टिवल्स पे किसी ओकेजन पे यूज़ करते हैं उनको, तो उनकी वजह से भी साउंड पोल्यूशन होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, टीवीज़ एंड ट्रांजिस्टर्स जो हमारे घरों में होते हैं। उन लाउड स्पीकर्स जो मस्जिदों में या कहीं और जगह पे लगाए जाते हैं, और जिनकी वजह से जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो होता है, बढ़ता है। So this is the solution of question number 9. Moving on to question number 10, which is you have to explain in what way noise pollution is harmful to humans. अब pollution चाहे वो air का हो या water का हो या noise का हो, तो it's always harmful to humans, चाहे वो किसी भी type का pollution हो. So here in this question they are saying how noise pollution is harmful to humans, and noise pollution causes lack of sleep, एंग्जाइटी होती है, हाइपरटेंशन होते हैं, और भी डिफरेंट तरीके की डिजीज़ेस हो सकती है इससे, स्ट्रेस हो सकता है, एंड यू कुड फील द फटीग, थकान हो सकती है। इवन योर एयर्स जो है एयर ड्रम, उन पे असर पड़ता है, डेफनिंग हो सकती है या पार्शल डेफनिंग हो सकती है। सो देर आर सो मैनी कॉजेज़ जो कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं, एंड वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू लेसन इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। हमसे जितना बन पाएगा अपने घरों में, अपने सराउंडिंग्स को लेकर, सो वी शुड ऑलवेज़ ट्राई टू क्रिएट लेस of it. Okay, now moving on to question number 11, which is your parents are going to buy a house, and they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. अब जी आपके पेरेंट्स को ऑप्शन दिए गए हैं कि वो एक घर ख़रीद रहे हैं, लेकिन उनको ऑप्शंस दिए हैं कि या तो रोड साइड पर ही आप घर ले लें जो कि बिल्कुल सड़क पे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना लगता ही है, वहाँ से शोर वो सब होता ही है, या तो उनको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि 2-3 गलियाँ छोड़ के फिर कहीं और ले ले। तो आपके पेरेंट्स को ये डिसाइड करना है कि विच हाउस दे शुड प्रेफर, एंड अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है कि वाई दे आर प्रेफरिंग दैट थिंग. So I would suggest my parents, if my parents gonna buy a house, so they should buy a house 3 lanes away from the roadside, because houses on the roadside which are there would be much noisy in both days and night due to running vehicles, जो कि गाड़ियों का, ट्रैफिक का वहाँ पे आना जाना होता है, उसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से वहाँ पे जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, चाहे वो दिन हो या रात हो, क्योंकि ट्रैफिक का आना जाना तो लगा ही रहता है. इट्स 24/7 जॉब, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, कुछ और. सो वेयर एज अ हाउस जो अगर हम 3 लेन्स अवे छोड़ के फिर वहाँ पे चॉइस अपनी हो, दैट वुड बी कंपेरेटिवली क्वाइटर, एज द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाएगी विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर. सो वहाँ पे ट्रैफिक का जो शोर है या बाकी आम शोर है वो थोड़ा सा कम होगा, उसकी इंटेंसिटी जो है, असर जो है वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर जो घर हम रोड साइड पे ले लें. सो आई वुड प्रेफर माई पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड. सो दिस वॉज अबाउट the question number 11. Now moving on to the 12th question, which is you have to make a sketch of larynx and explain its function in your own words. Now larynx जो है that is the voice box, and
that is the main organ which is responsible for producing sound. So larynx is also known as voice box, and it is at the upper end of windpipe के ऊपर वाले हिस्से में होती है. And उसके साथ जो है two vocal cords are stretched across the voice box, and in such a way that it leaves a narrow slit between them. और उसी नैरो पैसेज जो है वहाँ से एयर पास होता है, और जिसकी वजह से फिर वो एयर जो है वो वाइब्रेट होने लगता है विद इन दीज कॉर्ड्स, एंड वी कैन प्रोड्यूस साउंड. सो व्हेन लंग फोर्स एयर थ्रू दैट स्लिट, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड दे प्रोड्यूस साउंड. सो मसल्स also attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. So this is the main function of our local cord. लोकल कॉर्ड को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ये विंड पाइप के ऊपर वाले हिस्से में होता है, एंड इनके बीच में जो है एक लैरिंक्स जो है वो ऐसे होती है, मतलब नैरो पैसेज जैसी होती है, तो जिसके थ्रू एयर होता है, और जब लंग फोर्सिबली एयर पास करता है थ्रू दैट स्लिट, तो ये एयर की वजह से वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, एंड हेंस वी प्रोड्यूस साउंड. और जो मसल्स अटैच होती हैं इन वोकल कॉर्ड्स के साथ, वो इन कॉर्ड्स को टाइटन या लूज़ करती है एज वी साउंड. जब भी हम कोई बात करते हो तो तब ये मसल्स लूजन या टाइटन भी होती हैं, वोकल कॉर्ड्स के साथ होती है. एंड व्हेन द लोकल वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. यानी कि इन सभी दोनों वॉइस इनमें जो अब वोकल कॉर्ड्स अगर थिन हो या थिक हो, तो वॉइस क्वालिटी जो है वो डिफ़र करती है. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ 13th. लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम. अभी अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो राइट एट दिस टाइम, राइट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, यहाँ से भी लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है. ओके. Now lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? अगर आपने भी कभी ऑब्ज़र्व किया हो, जब ये लाइटनिंग और थंडरिंग बादल जो है जब ये गरजते हैं या इनमें से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, तो कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि पहले हम लाइटनिंग देखते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद फिर थंडरिंग होती है. यानी फर्स्ट वी सी द लाइट एंड देन लेटर ऑन वी हेयर द थंडरिंग ऑफ द क्लाउड्स. सो इसका क्या कारण है, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मोर दैन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड. यानी लाइट की जो स्पीड है, लाइट जो ट्रैवल करती है, मतलब उसकी जो स्पीड है ट्रैवल करने की, वो बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू साउंड. तभी हमको जल्दी पहले लाइट ऑब्ज़र्व होती है, फिर उसके बाद हम साउंड हेयर करते हैं, सुनते हैं. दस ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीच अस बिफोर साउंड. तभी स्पीड, जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होने की वजह से पहले हम लाइट को ही देख पाते हैं और उसके बाद हम साउंड सुनते हैं. सो लाइटनिंग इज़ सीन अर्लियर एंड थंडर इज़ हर्ड लेटर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर साउंड. तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए एंड नोट इट डाउन. होपफुली see you in the next class with next chapter. Till then, Allah Hafiz, take care.